Very good evening, all the participants. Good evening, sir. So, let me share my screen also with you. And I hope this PPT is now visible to you. So, let us particularly see the provisions regarding removal of name of the company from the register of companies, winding up, etc., etc. वो कौन सा चैप्टर में आता है सर? ये कंपनी से एक्ट में ये कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर में बता देता हूँ। चैप्टर नंबर वाइंडिंग अप 10 में होगा। चैप्टर नंबर में बता देता हूँ। ऐसा मुझे याद तो नहीं है नंबर क्या है। तो 10 तो नहीं हो, ज्यादा होगा, 20 के आसपास होगा ये। 20 है सर, हाँ, दस नंबर के 20। आसपास। हाँ, चैप्टर 20। ठीक है। ठीक है जी। ओके। सो ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ जी। अब क्या कहता है ये? वाइंडिंग अप बोलता है सेक्शन 248। वाइंडिंग अप का स्टार्ट हो रहा है आपका सेक्शन ये 270 से स्टार्ट हो रहा है। The registrar of companies may remove the name of the company from the register of companies in terms of section 248(1). अब 248(1) क्या है? 248(1) भी देख लेते हैं। 248(1) बेसिकली बोलता है पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू रिमूव नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो पावर कहां पे आ रही है? पावर आ रही है सेक्शन 248 के अंदर। ठीक है। तो the registrar of companies may remove the name of the company from the register of companies in terms of section 248(1) of the act। क्या होना चाहिए? पहला, a company has failed to commence its business within 1 year of its incorporation। ठीक है। 1 साल हो गया, आपने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया। A company is not carrying on any business or operation for a period of 2 immediately preceding financial years and has not made any application for obtaining the status of dormant company। अगर आप 2 साल से कंटिन्यूस काम नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? डॉर्मेंट स्टेटस के लिए अप्लाई करना है। अगर आप काम भी नहीं कर रहे और डॉर्मेंट स्टेटस भी अप्लाई नहीं किया तो रजिस्ट्रार आपका नाम रिमूव कर सकता है। ठीक है। नाउ फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंपनीज नेम शेल नॉट बी रिमूव्ड बाय सीओसी। कौन सा? लिस्टेड कंपनीज। ठीक है। क्योंकि लिस्टेड कंपनीज में सेबी का भी रोल आ जाता है, बहुत सारी चीजें। डी लिस्टेड कंपनीज ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ लिस्टिंग रेगुलेशंस और लिस्टिंग एग्रीमेंट और एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। वैनिशिंग कंपनीज। ठीक है। कंपनीज वेयर इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन आर पेंडिंग इन द कोर्ट। कंपनीज whose actions are pending under section 206 और 207 और 208। अब ये सेक्शन 206, 207, 208 क्या है? ये सेक्शन आपको बताते हैं। अगर आप सेक्शन 206 पढ़ो तो वो बेसिकली इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन वगैरह की बात करता है। ठीक है। अगर आपका इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चालू है तो भी आप रिमूव नहीं कर सकते। कंपनीज अगेंस्ट विच प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस पेंडिंग। Companies which have accepted public deposits which are either outstanding or the company is in default in repayment of the same. Companies whose application for compounding is pending before the competent authority for compounding of offences committed by the company or any of its officers in default.
companies whose charges are pending for satisfaction, and companies registered under section 25 of the Companies Act 1956 और section 8 of this act. अभी पहले सेक्शन 25 होता था 1956 वाले एक्ट में, और ये 2013 में हो गया सेक्शन 8. सर ये एक्चुअल कंपाउंडिंग मीनिंग क्या है सर? कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि समटाइम्स यू कैन गेट अवे विद एन ऑफेंस बाय पेइंग सम एक्स्ट्रा फीस, से फाइन. हाँ. So basically, this is the meaning of compounding. Compounding means that the authorities agree that you pay a particular fine for an offense. Suppose lot of amounts is pending for different years, so they may compound it for a single amount. Notice to be given by the ROC. So first of all, what they will do, ROC shall issue a notice to the company and to all the directors at their registered address of his intention to remove the name of the company, requesting them to send their representations, if any, along with the copies of relevant documents within 30 days from the date of notice. नाउ वॉलंटरी, ये तो हो गया जब रजिस्ट्रार नाम रिमूव कर सकता है. ठीक है, कौन कौन से रीजन दे दिए? You fail to commence business, or you are not carrying on business or operations for a period of 2 years, and you have not applied for a dormant status. ये नाम रिमूव नहीं कर सकते. बेसिकली इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है. ठीक है, या और कोई चार्जेस पेंडिंग है, पब्लिक डिपॉजिट्स पेंडिंग है, ऑफेंसेस पेंडिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा. आरओसी क्या करेगा? नोटिस देगा और ये कहेगा भैया आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस अलॉन्ग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. Now, voluntary application by company for striking of the name from the register of ROC. ठीक है, इसमें क्या कहता है कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप कौन कर सकता है? ये कहता है एनी कंपनी अदर देन सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप में नहीं जा सकती है. ठीक है, मे एज पर सेक्शन 248(2) of the act may voluntarily make an application for striking of the name of the company from the register of companies maintained by ROC after extinguishing all its liabilities by obtaining approval of 75% members in terms of paid up share capital or consent by way of special resolution. ये आपका सेक्शन 59 में आ गया अभी है. ठीक है, a company which is regulated under a special act is required to obtain approval of the regulatory body constituted or established under that act. Now, procedure for application. In order to make an application for voluntary strike off, the company needs to follow the below mentioned procedure. सबसे पहले बोर्ड मीटिंग कॉल करनी है, शेयर होल्डर्स मीटिंग कॉल करनी है, एप्लीकेशन टू आरओसी, सर्टिफिकेशन, publication of notice, undertaking by directors regarding discharge of liabilities, intimation to authority for objection or suggestions, dissolution, and application or forms pending before central government. ये प्रोसीजर है बेसिकली इन ब्रीफ. ये आपके स्ट्राइक ऑफ के लिए फॉर्म्स है. Now, section 2, subsection 94A of the Companies Act provides for the following definition of winding up. तो वाइंडिंग अप का क्या मतलब? वाइंडिंग अप मीन्स वाइंडिंग अप अंडर दिस एक्ट और लिक्विडेशन अंडर द आईबीसी एक्ट. सेक्शन 271, सेक्शन 271 पर हमें चलना है. सेक्शन 271 क्या बोलता है? सेक्शन 271 बोलता है वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल. तो सेक्शन 271 of the Companies Act provides that a company may, on a petition under section 272, be wound up by the tribunal under the following circumstances. पहला, if the company has by special resolution resolved that the company be wound up by the tribunal. ठीक है, if the company has acted against the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality. If on an application made by the registrar or any other person authorized by the central government by notification under this act, if the company has made a default in filing with the registrar its financial statements or annual returns for immediately preceding 5 consecutive financial years. उसके बाद में इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी बाउंड अप. तो ये हमारे पास इसके लिए रीजंस है, इस सेक्शन 271 के अंदर दे रखे.
जस्ट सेक्शन 272(1) क्या बोलता है? सेक्शन 272 बोलता है पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, क्योंकि सेक्शन 271 में क्या बोला कि यू कैन वाइंड अप ए कंपनी बाय फाइलिंग ए पिटीशन अंडर सेक्शन 272। अब 272 देखते हैं। तो सेक्शन 272 वन ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन ए पिटीशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी शैल बी प्रेजेंटेड। कौन प्रेजेंट कर सकता है? या तो कंपनी या एनी कंट्रीब्यूटरी और कंट्रीब्यूटरीज, all or any of the persons specified in clauses A and B, registrar, any person authorized by the central government, and in a case falling under clause B of section 271 by the central government or a state government. अब 271B क्या है? 271B बोलता है if the company has acted against the interest of the sovereignty and integrity of India, etc. etc. ठीक है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल। अब सेक्शन 273 बात करता है आपकी ये ट्रिब्यूनल की क्या पावर्स है। सेक्शन 273 वन ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स द ट्रिब्यूनल में ऑन रिसीट ऑफ ए पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप अंडर सेक्शन 272 पास एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स, नेमली पहला, डिसमिस इट विद और विदाउट कॉस्ट, मेक एनी इंटरिम ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, अपॉइंट ए प्रोविजनल लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी टिल द मेकिंग ऑफ ए वाइंडिंग अप ऑर्डर, make an order for the winding up of the company with or without cost or any other order as it thinks fit। तो सेक्शन 271 में क्या है? सेक्शन 271 में ग्राउंड्स दे रखी हैं, ठीक है। सेक्शन 272 क्या बोलता है? सेक्शन 272 बोलता है कि पिटीशन किसको लगानी है, हु कैन प्रेजेंट द पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, ठीक है। 273 क्या बोलता है? 273 बोलता है कि पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल क्या है वंस ए पिटीशन इज रिसीव्ड, ठीक है। डिसमिस कर सकता है, एडमिट कर सकता है, इंटरिम ऑर्डर दे सकता है, प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकता है ना। इट कैन मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप विद और विदाउट कॉस्ट और एनी अदर ऑर्डर्स। प्रोविजनल लिक्विडेटर, लिक्विडेटर पहले जो अपॉइंट करता है वो प्रोविजनल बोलते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उसमें क्या है, जैसे ही पिटीशन आई ना तो प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर देगा इमीडिएटली। अभी वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं दिया, पिटीशन आपके हाँ, पास आ गई, पिटीशन आते ही क्या करेगा, प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर देगा, वाइंडिंग अप ऑर्डर बाद में आएगा। अच्छा, ओके। वॉलंटरी वाइंडिंग अप, a corporate person who intends to liquidate itself voluntarily and has not committed any default may initiate voluntary liquidation proceedings, ठीक है। ये वही है जो हमने पढ़ा है सेक्शन 59, ये सेक्शन 59 ही है। सेक्शन 59 ऑफ आईबीसी। हाँ 5BC, यस यस यस, हाँ वही है। हाँ, तो इसको अलग से हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम ही है। इसको तो आप देख लीजिएगा, इस पर कोई खास बात नहीं है। ये थोड़ा सा पनिशमेंट के ऊपर देख लेते हैं, फिर सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर देखेंगे। सेक्शन 8 के ऊपर भी कई बार सवाल पूछता है। देखिए ऐसा है, देर आर टू टाइप्स ऑफ पेनल्टीज अंडर कंपनीज एक्ट। कुछ तो क्या है कि सेक्शन वाइज दे रखी है, ठीक है, जैसे प्रोस्पेक्टस में है, हर तरह से रिडक्शन ऑफ कैपिटल में है, हर जगह उन्होंने सेक्शन वाइज पेनल्टीज दे रखी हैं, पनिशमेंट्स दे रखी हैं। लेकिन हमारा लास्ट में फिर जो है ये पनिशमेंट्स का अलग से भी इन्होंने दे रखा है कि बहुत सारी जगह क्या होता है कि पनिशमेंट मान लो कहीं प्रोवाइडेड ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ये मिसलेनियस में कवर होता है आपका, ठीक है ना। ये आपका सेक्शन आएगा 29, ठीक है। सेक्शन 447, सेक्शन 447 क्या बोलता है? पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ एटलीस्ट 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर। कितना अमाउंट होना चाहिए, अमाउंट के ऊपर है पेनल्टी, ठीक है। इसमें दो तरह से पेनल्टी है, या तो अमाउंट है या फिर ये कि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि नहीं, ठीक है। पहला हम अमाउंट के बारे में देख लेते हैं। अगर अमाउंट ऑफ फ्रॉड जो है 10 लाख रुपए है या 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी है विच एवर इज लोअर, तो उस केस में पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट उसमें इम्प्रिजनमेंट है, 6 महीने से कम नहीं हो सकती, बट विच में एक्सटेंड टू 10 years, एंड shall also be liable to fine which shall not be less than the amount involved in the fraud
बट विच में एक्सटेंड टू 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। ठीक है, ये हमारा सेक्शन क्या वो कौन सा बोलता है? 447। फ्रॉड इन क्वेश्चन इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई ऐसा फ्रॉड है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शेल नॉट बी लेस देन 3 years। ठीक है, अदरवाइज कितनी है इम्प्रिजनमेंट है? नॉट लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 10 years। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो मिनिमम पनिशमेंट आपकी शेल नॉट बी लेस देन 3 years। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए कि फ्रॉड इन्वॉल्व्स अमाउंट लेस देन 10 लाख रुपीज। तो 3 तरह के हो गए। पहला 10 लाख रुपए या 1% ऑफ टर्नओवर, उसमें कितना है 6 महीने से 10 साल, और फ्रॉड का अमाउंट और मैक्सिमम 3 times द अमाउंट ऑफ द फ्रॉड। दूसरा, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शेल नॉट बी लेस देन 3 years। तीसरी सिचुएशन कौन सी है? अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज लेस देन 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ टर्नओवर, मतलब लेस देन 1% ऑफ द टर्नओवर, विच एवर इज लोअर। ठीक है, और पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है। तो उस केस में कितनी पनिशमेंट है? उसमें है इट में एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 50 लाख रुपीज और विद बोथ। ठीक है, एक्सटेंड टू 5 years का मतलब ये है चाहे 1 महीने की भी इंप्रिजनमेंट हो सकती है, मैक्सिमम पीरियड मिनिमम पीरियड इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, जबकि अगर 10 लाख का फ्रॉड है या 1% ऑफ टर्नओवर है तो मिनिमम 6 months है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो 3 साल से कम नहीं होगी। ठीक है, और इसमें अगर अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज लेस देन 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ टर्नओवर एंड डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, तो उस केस में इट में एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 50 लाख रुपीज और विद। ठीक है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। तो फॉल्स एविडेंस के लिए कितनी पनिशमेंट है? 3 years to 7 years और फाइन है अप टू 10 lakhs। पनिशमेंट वेयर नो स्पेसिफिक पनिशमेंट और पेनल्टीज प्रोवाइडेड, क्योंकि नॉर्मली सेक्शन वाइज इन्होंने पेनल्टीज दे रखी है, लेकिन हमें ये 447 तो खास तौर से ध्यान में रख लेना है। 447 पे कई बार वो सवाल पूछ लेता है। द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट और सच अदर पर्सन शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज। ठीक है, तो मिनिमम पेनल्टी इसमें कितनी है? 10,000 रुपीज, and in case of continuing contravention with a further penalty of 1,000 rupees for each day after the first during which the contravention continues, subject to a maximum of 2 lakh rupees in case of a company and 50,000 rupees in case of an officer who is in default or any other person। ठीक है, तो ये कहाँ है? अगर कोई किसी सेक्शन में स्पेसिफिक पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं दे रखी तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो ये बताता है कि पेनल्टी होगी मिनिमम 10,000 रुपीज। ठीक है, और कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन में 1,000 रुपीज फॉर ईच डे, मैक्सिमम होगा 2 लाख रुपीज। ठीक है, इन केस ऑफ कंपनी एंड 50,000 रुपीज इन केस ऑफ एन ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट और एनी अदर पर्सन। पनिशमेंट इन केस ऑफ रिपीटेड डिफॉल्ट। ठीक है, इफ ए कंपनी और एन ऑफिसर ऑफ ए कंपनी कमिट्स एन ऑफेंस पनिशेबल आइदर विद फाइन और विद imprisonment and where the same offense is committed for the second or subsequent occasions within a period of 3 years। ठीक है, आपने एक बार पनिश कर या आपका एक बार ऑफेंस कर दिया और रेपिटेटिव ऑफेंस हो गया आपका। ठीक है, सेम ऑफेंस इज कमिटेड फॉर द सेकंड और सब्सिक्वेंट ओकेजन्स विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years, देन दैट कंपनी एंड एवरी ऑफिसर thereof who is in default shall be punishable with twice the amount of fine for such offense in addition to any imprisonment provided for that offense। ठीक है, तो फाइन इस केस में डबल हो जाएगा। ठीक है, punishment for wrongful withholding of property। If any officer or employee of a company wrongfully obtains possession of any property, including cash of the company, or having any such property, including cash in his possession, wrongfully withholds it or knowingly applies it for the purposes other than those expressed or directed in the articles and authorized by this act, तो उस केस में फाइन कितना है? 1 लाख रुपीज to 5 लाख रुपीज। ठीक, पनिशमेंट फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। आपने देखा होगा कंपनी के पीछे नाम लिखा रहता है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड नहीं है, मान लो प्रोप्राइटरशिप है और आप पीछे लिमिटेड लिख देते हो, तो उस केस में भी फाइन है। ठीक है, कितना फाइन है? 500 रुपीज बट मे एक्सटेंड टू 2,000 रुपीज फॉर एवरी डे फॉर विच दैट नेम और टाइटल हैज बीन यूज्ड।
ये तो खैर पार्टनरशिप का है, पार्टनरशिप अब बाद में देख लेंगे। इसमें ना एक काम और करते हैं, सेक्शन 8 कंपनी पहले देखते हैं। ये है, हाँ, FAQ 1 सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है जी। अब सेक्शन 8 कंपनी तो आपको पता ही है क्या होती है। सेक्शन 8 कंपनी में बेसिकली क्या होता है, दीज आर कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट। अभी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी कम्स अंडर सेक्शन 8 कंपनी ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, IPS, राइट। ऑल IPS दे कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज सेक्शन 8 कंपनीज, यस। तो पहली बात तो ये है कि इसमें मेन मेन प्रोविजंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो क्या है? अपना अपना सिलेबस में ये कौन सा इसमें आता है सर, सेक्शन 8 कंपनी? चैप्टर 2 में आता है क्या किसका? ये सेक्शन 8 कंपनी? नहीं, इसमें अपना? ऐसा है ना, इसके ना प्रोविजंस अलग अलग हैं बहुत। अच्छा। वो कहता है, सेक्शन 8 तो है ही है, सेक्शन 8 तो बेसिक सेक्शन है। सेक्शन हाँ। 8 ऑफ कंपनीज एक सेक्शन है। सेक्शन 8 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। लेकिन क्या है कि बहुत सारी जगह पर सेक्शन 8 का रेफरेंस आता है। ओ वो रेफरेंस यस। क्या बोलता है कि भाई मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट सेक्शन 8 कंपनी में होगी नहीं होगी, इस तरह से। तो वो कई बार क्या करता है, इन द एग्जामिनर दे आस्क यू ए फुल क्वेश्चन या केस स्टडी बना देता है पूरा सेक्शन 8 कंपनी पर ही। हम्म। क्योंकि सेक्शन 8 के अलावा आपको बहुत सारे सेक्शंस में देर आर स्पेशल प्रोविजंस फॉर सच टाइप ऑफ कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज के लिए। जैसे मान ओके। लीजिए कहीं साइनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो बोलेगा भाई सेक्शन 8 कंपनी में इस तरह से कर लो, ये चीज। तो सेक्शन 8 कंपनी आप ऐसा कह सकते हो कि पूरे कंपनी एक्ट के अंदर ही फैली हुई है। सेक्शन 8 तो है ही अच्छा। है। सेक्शन 8 के अलावा जगह जगह रेफरेंसेस आते, जैसे लिस्टेड कंपनीज का जगह रेफरेंस आता कई जगह, है ना, कि हाँ भाई हाँ। लिस्टेड कंपनीज के लिए ये प्रोविजन है, इस तरह सेक्शन 8 कंपनीज के लिए भी स्पेशल प्रोविजन यस सर। है। तो दैट इज वाई इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वी मस्ट रीड इट। तो ये क्या कहता है? और कई बार पूछ चुका है वो। यस सर। तो सेक्शन 8 कंपनीज में सेक्शन 8 कंटिन्यूज टू प्रोवाइड फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। सेक्शन 8 में क्या बोलता है? सेक्शन 8 में बोलता है कि भाई जो भी कंपनीज के आपके प्रॉफिट हैं, तो वो देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड परमिट्स द सेम ओनली फॉर द पर्पसेस फॉर विच द कंपनी इज प्रमोटेड। ठीक है। देयर इज प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कंटिन्यूज टू परमिट पार्टनरशिप फॉर्म्स टू बी ए मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है। तो दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या? अगर हम सेक्शन 8 पढ़ते हैं तो सेक्शन 8 क्या बोलता है? वेन इट इज प्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो रीजनल डायरेक्टर को इसमें एप्लीकेशन लगती है सेक्शन 8 कंपनी के केस में। जहां पर भी वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मीन्स थ्रू द रीजनल डायरेक्टर। ठीक है। दैट ए पर्सन और एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस proposed to be registered under this act as a limited company has in its object the promotion of commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment, or any such other object. Intends to apply its profits, if any, or other income in promoting its objects, and intends to prohibit the payment of any dividend to its members. ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको अलाउ कर देगा टू बी रजिस्टर्ड एज ए लिमिटेड कंपनी। ठीक है। विदाउट द एडिशन टू इट्स नेम ऑफ द वर्ड लिमिटेड और एज द केस में बी द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसी कंपनीज के पीछे में
लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, पहला बात है। तो कोई डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड नहीं होगा, और पार्टनरशिप फॉर्म भी जो है वो भी आ, आपकी मेंबर हो सकती है ऑफ ए सेक्शन 8 कंपनी। सर रीजनल डायरेक्टर मीन्स हेड ऑफ दिस एमसीए, हाँ एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 हाँ। आजकल तो ऑनलाइन अप्लाई होने लग गया ये भी, खैर। अब इसमें ये देखिए, ये प्रोविजंस कहाँ कहाँ है, ये देखिए यहाँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सर थोड़ा साइज बढ़ाइए ना सर। एक मिनट, इसमें ये साइज कहाँ से बढ़ेगा? व्यू में फॉन्ट जाएगा, फुल स्क्रीन। कम हो गया। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये जो है, आपके राइट साइड नीचे सर, हम्म। फाइल के। हेलो, मेरी क्लास चल रही है सर, मैं बाद में करता हूँ बात। हाँ जी, हाँ जी। अब वो कल होगा सर, कल, कल काउंटिंग होगी। मेरी क्लास चल रही है, मैं करता हूँ बाद में आप। हाँ जी, ओके। हाँ जी, क्या कह रहे हो? राइट में? राइट साइड नीचे, हाँ। वहां पे परसेंटेज बढ़ाइए सर। अच्छा, ये 80 कुछ है। बात अब ठीक हाँ ठीक है। है ना? हाँ सर इसमें सेक्शन 8(1) में हाँ। अंडर दिस एक्ट एज लिमिटेड कंपनी बोल के लिखा है ना सर? कहाँ लिमिटेड कंपनी लिखा है? नहीं नहीं नहीं, एक लिमिटेड नहीं लिखा। वो ये कहता है कि लिमिटेड भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है। लिमिटेड कहाँ लिखा वर्ड? नहीं लिखा। एज ए लिमिटेड ये कंपनी, हाँ ठीक है। एज ए लिमिटेड कंपनी। हाँ, बट वो कहता है ना बाद में, विदाउट द एडिशन टू इट्स नेम ऑफ द वर्ड लिमिटेड, और एज द केस में भी द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, बाद में देखिए। नॉर्मली तो सेक्शन 8 कंपनी लिमिटेड कंपनी ही होती है, प्राइवेट लिमिटेड तो अलाउ करेंगे नहीं उसमें। लेकिन ये पुराना चला आ रहा है, तो इसलिए इसमें भी चेंज नहीं किया। इसमें 2013 में भी दोनों ही वर्ड यूज किए गए, लिमिटेड भी और प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें कुछ एफएक्यू देख लेते हैं। ये देखिए, इनमें ना अलग अलग चीजें हैं, जैसा एलिजिबिलिटी, लाइसेंसिंग प्रोविजंस, कन्वर्जन टू सेक्शन 8 कंपनी एंड वाइस वर्सा, जनरल मीटिंग, ई वोटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड प्रोसेस, बोर्ड कमिटीज, सीएसआर, एमेलगमेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं। तो हु कैन अप्लाई? पहला, हु कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए सेक्शन 8 कंपनी? तो एनी पर्सन और एन एओपी इंटेंडिंग टू रजिस्टर ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी फॉर ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड बिलो कैन ऑप्ट टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए सेक्शन 8 कंपनी। क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट्स, एक तो ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए? प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन वगैरह। ठीक है। और कंपनी को अपने प्रॉफिट्स कहां पर अप्लाई करने हैं? इन प्रोमोटिंग सच ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और फिर डिविडेंड नहीं देना है। द कंपनी इंटेंड्स टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। ठीक है। और पावर किसके पास है? पावर आपके पास है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, और उन्होंने डेलीगेट कर दी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब रीजनल डायरेक्टर। तो यहां पर्सन के मतलब क्या है, ये भी दिया गया है। क्योंकि सेक्शन 8 कहां से शुरू होता है? सेक्शन 8 शुरू होता है, 8(1) अगर हम पढ़ें, वेर इट इज प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट ए पर्सन और एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ठीक है। अब हमें वर्ड देखना है, वो इसका मीनिंग देखना है, पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्संस का मीनिंग क्या है। ठीक है। तो पर्सन इज नॉट डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 241 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट प्रोवाइड्स दैट पर्सन शैल इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स whether incorporated or not. ठीक है। तो therefore such a person can be a natural person or a legal person. ठीक है। It is also relevant to note that by virtue of provisions of section 8 subsection 3, even a partnership firm
कैन बी ए मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, क्योंकि सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 में क्या लिखा है, ए फर्म में बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन। हेलो, अरे बेटे मेरी क्लास चल रही होती है यार, मुझे क्यों डिस्टर्ब करता बेटा। मैं करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस, तो इसमें सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 बोलता है ए फर्म में बी ए मेंबर ऑफ ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, तो इवन ए पार्टनरशिप, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेदर ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी ए मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, द आंसर इज यस। ये कहाँ लिखी है बात, सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 के अंदर। ठीक है, अब प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन क्या है, जो जो भी मेन पॉइंट्स है ना, मैंने उनको क्या किया, मैंने उसको रेड मार्क कर दिया है, तो उतना तो आपको जरूर पढ़ लेना है। आप कहोगे ये तो 75 पेजेस हैं, 75 पेजेस सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने रेड में मार्क किया है उतना आप जरूर पढ़ लें। ठीक है, अब ये अगर आपसे पूछ लेगा कि वेदर ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी, द आंसर इज यस। ठीक है, प्रोसीजर तो सिंपल ही है, ड्राफ्ट करना है आपको मेमोरेंडम आर्टिकल्स, ठीक है, उसके बाद में आपको ये INC 14 भरना है, जो भी है डिक्लेरेशन वगैरह है। ये एक कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी रेड में मार्क है ना वो आप जरूर पढ़ लें। क्या कहता है, ए कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज ए सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो गया, कैन ए कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी बी रजिस्टर्ड एज सेक्शन 8 कंपनी, द आंसर इज नो। ठीक है, ये रूल 20 सब रूल 1 कहता है। क्या उसमें शेयर कैपिटल होनी जरूरी है सेक्शन 8 कंपनी में, तो सेक्शन 8 कंपनी में बी इनकॉर्पोरेटेड एज ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी, विद और विदाउट शेयर कैपिटल। ठीक है, क्या ये वर्ड्स लिखना है, फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट। ठीक है, तो वो क्या है, ये वर्ड आपको लिखने पड़ते हैं। आपने देखा होगा ना बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, वो सारी सेक्शन 8 कंपनी है बेसिकली। वो वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखते, उनकी जगह ये लिखते हैं वर्ड, क्या लिखते हैं, फेडरेशन, फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, ठीक है, चैम्बर्स, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, जैसे नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, बहुत सारी चीजें इस तरह से, है ना, इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड द लाइक। ये बात कहाँ लिखी गई है, रूल 8 सब रूल 7 के। तो जो जो भी रेड मार्क की है ना उसको जरूर पढ़ लो आप। अच्छा ये देखिए, कैन ए 1 पर्सन कंपनी बी इनकॉर्पोरेटेड एज और कन्वर्टेड इनटू ए सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, तो वो ये कहता है कि 1 पर्सन कंपनी को आप सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो नो, रूल 3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 प्रोहिबिट्स ए 1 पर्सन कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेटेड एज ए सेक्शन 8 कंपनी और टू कन्वर्ट इनटू ए सेक्शन 8 कंपनी। अगर वो पूछेगा भाई एक OPC है, क्या आप उसको सेक्शन 8 में कन्वर्ट कर सकते हो, द आंसर इज नो। ठीक है, कैन 1 पर्सन बिकम मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, नो। ठीक है, रूल 3 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स 1 पर्सन कंपनी टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो OPC जो है ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकती किसमें, सेक्शन 8 कंपनी। पार्टनरशिप फर्म क्या बन सकती है मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, आंसर इज यस। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म और एन LLP कैन बिकम मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, a cooperative society can be regarded as a person and thus capable of being becoming subscriber of a company including section 8 कंपनी। अब ये पूछता है क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या मेंबर बन सकती है सेक्शन 8 कंपनी का, द आंसर इज यस। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो भी एक पर्सन है। अच्छा, कैन ए कंपनी बी ट्रीटेड एज सेक्शन 8 कंपनी एज वेल एज ए स्मॉल कंपनी,
प्रोवाइडेड दैट द कंपनी हैज नॉट एक्सीडेड द थ्रेशोल्ड। सेक्शन 285 में हमने थ्रेशोल्ड पढ़ रखी है स्मॉल कंपनीज की। क्या थ्रेशोल्ड है? 4 करोड़ रुपीज पेड अप कैपिटल एंड और 40 करोड़ 40 करोड़ टर्नओवर। टर्नओवर। ठीक है ना? तो वो ये कहता है कि क्या सेक्शन 8 कंपनी और स्मॉल कंपनी भी दोनों भी हो सकती हैं? नो। ठीक है, क्योंकि ये जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 है, ये सेक्शन 8 कंपनी पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली ए सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए स्मॉल कंपनी। ठीक है, लाइकवाइज ए स्मॉल कंपनी ऑन कन्वर्जन टू ए सेक्शन 8 कंपनी शैल सीज टू बी ए स्मॉल स्मॉल कंपनी। जैसे स्मॉल कंपनी में ये भी लिखा है कि वो सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए किसी की, है ना, लिस्टेड कंपनी की, वो सारी बातें उसमें लिखी गई हैं, है ना। सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए किसी लिस्टेड कंपनी की, यस सर। किसी पब्लिक कंपनी की। तो इसमें क्या लिखा कि स्मॉल कंपनी को अगर आप कन्वर्ट कर दो सेक्शन 8 कंपनी में, तो इट शैल सीज टू बी ए स्मॉल कंपनी। ठीक है, क्या बाहर से कंट्रीब्यूशन ले सकती है सेक्शन 8 कंपनी? देखो सेक्शन 8 में ना, सेक्शन 8 कंपनी पूरे एक्ट के अंदर फैली हुई है, कंपनीज एक्ट में जगह जगह प्रोविजंस है। इसीलिए वो कई बार क्वेश्चन पूरी की पूरी केस स्टडी सेक्शन 8 पर बना देता है। इसीलिए इसको प्रोविजन को पढ़ना जरूरी है, और कम से कम जो रेड में मार्क है उतना आप जरूर पढ़ लें। तो देर आर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स टू बी कंप्लाइड विद अंडर द FCRA एक्ट बिफोर ए सेक्शन 8 कंपनी कैन रिसीव एनी कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो FCRA वाले रूल्स इस पर लागू होंगे। क्या ये होल्डिंग कंपनी हो सकती है? द आंसर इज यस। कैन सेक्शन 8 कंपनी बी ए होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर कंपनी? यस। अब कन्वर्जन के लिए क्या प्रोसीजर है? ये कन्वर्जन का प्रोसीजर दे रखा है। कैन ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बी रजिस्टर्ड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी? ये इंपॉर्टेंट है। जो LLP है, क्या उसको सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं? यस। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 बोलता है अलाउज पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्संस टू बी रजिस्टर्ड एज ए सेक्शन 8 कंपनी। और पर्सन में क्या कवर्ड है? पर्सन में सारी चीजें कवर्ड है, कंपनी भी कवर्ड है, एसोसिएशन भी कवर्ड है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी कवर्ड है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म भी कवर्ड है। तो अकॉर्डिंगली ए LLP इज ए पर्सन, देयरफॉर इट कैन बी रजिस्टर्ड और कन्वर्टेड एज ए सेक्शन 8 कंपनी। अब वो ये कहता है क्या 1 पर्सन कंपनी को आप सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो? उसके लिए आपको वाया मीडिया जाना पड़ेगा। पहले 1 पर्सन को प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ेगा, और फिर उसको सेक्शन 8 कंपनी बना सकते, डायरेक्टली नहीं जा सकते। पार्टनरशिप फर्म को क्या कन्वर्ट कर सकते हो सेक्शन 8 कंपनी में? आंसर इज यस। क्या सेक्शन 8 कंपनी को 1 पर्सन कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो? आंसर इज नो। अच्छा, क्या ये बैंक वगैरह से लोन ले सकती है सेक्शन 8 कंपनी? ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग बाय सेक्शन 8 कंपनी। हाउएवर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 180 इफ एप्लीकेबल आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद। उसके बाद में जनरल जो मीटिंग्स हैं और जो ई वोटिंग है, इसमें भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। किसके ऊपर? ई कंपनीज के ऊपर। जस्ट अ मिनट। हेलो, राम राम सर। सर मेरी क्लास चल रही है, मतलब हो गई, काउंटिंग तो खत्म हो गई ना, कल ही होगा, सुबह ही होगा जो भी होगा। ओके ओके ओके। तो वाइल फिक्सिंग दी, अच्छा ये अब इसमें एक तो जैसे 21 डेज नोटिस की बात आती है। ठीक है जी, कंपनीज में क्या होता है नॉर्मली आपको जनरल मीटिंग के लिए 21 डेज का नोटिस होता है। तो क्या सेक्शन 8 कंपनी में भी नोटिस देना होगा? ठीक है, तो इसमें यह है कि सेक्शन 8 कंपनी कैन होल्ड ए मीटिंग विद मिनिमम 14 डेज नोटिस। इसमें 21 डेज की बजाय आप 14 डेज का नोटिस दे सकते हैं। ठीक है, द वर्ड्स 21 डेज was substituted with the words 14 days। टाइम पीरियड क्या है फॉर सेंडिंग कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ठीक है, फॉर सेक्शन 8 कंपनी
इसमें क्या है, वो कहता है कि कॉपीज आप भेज दो नॉट लेस देन 14 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। ठीक है, क्योंकि आपको 21 days की बजाय 14 days का नोटिस हो गया ना, तो ये कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपने भेज दी है स्टेक होल्डर्स को, तो वो भी पीरियड आपका 14 days हो गया। पहले पीरियड ये 21 days था। अब हमारा सेक्शन 118 क्या बोलता है? सेक्शन 118 बोलता है कि भाई आपको मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी जनरल मीटिंग्स वगैरह की। ठीक है, तो वो ये कहता है कि एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है इस पे। तो सेक्शन 118 डज नॉट अप्लाई एज ए होल एक्सेप्ट दैट मिनट्स में बी रिकॉर्डेड विद इन 30 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग इन केस ऑफ कंपनीज वेयर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड फॉर कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स बाय सर्कुलेशन। ठीक है, तो सेक्शन 118 भी अप्लाई नहीं हो रहा है। क्या ई वोटिंग फैसिलिटी, क्या क्या होगा? जैसे आपको मालूम ही है कि अगर 1000 मेंबर से ज्यादा है तो इसमें ई वोटिंग फैसिलिटी देनी होती है उसको। ठीक है, तो ये वाला प्रोविजन क्या अप्लाई होगा? द आंसर इज यस। प्रॉक्सी किसको अपॉइंट कर सकते हैं? क्योंकि देखिए जनरल जनरल रूल अलग है, सेक्शन 8 के लिए उन्होंने अलग से लिख दी कई बातें। जैसे वाइंडिंग अप में भी हमने पढ़ा अभी, सेक्शन 8 का रेफरेंस पढ़ा ना, कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप, सेक्शन 8 कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी नहीं कर सकती अपने आप। ठीक है, अब कैन ए मेंबर ऑफ ए सेक्शन 8 कंपनी अपॉइंट एनी पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ सच कंपनी एज इज प्रॉक्सी फॉर जनरल मीटिंग? ठीक है, इसमें रूल 19 है। रूल 19 क्या बोलता है? ए मेंबर ऑफ ए कंपनी रजिस्टर्ड एज सेक्शन 8 shall not be entitled to appoint any other person as his proxy unless such other person is also a member of such company। ठीक है, तो प्रॉक्सी किसको अपॉइंट कर सकता है? जो वो भी मेंबर ही होना चाहिए कंपनी का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या मिनिमम और मैक्सिमम प्रेस्क्रिप्शन इसमें भी है क्या? तो देर इज नो प्रेस्क्रिप्शन विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर्स इन ए सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, however second proviso to section 149(1) requires a woman director in prescribed class of companies। क्या अगर जैसे मैक्सिमम कैपिंग भी है डायरेक्टरशिप पर, भाई ये पर्सन कैन बी डायरेक्टर इन सो मेनी कंपनीज, क्यों? क्या जो सेक्शन 8 में अगर कोई कंपनी में डायरेक्टर है तो क्या वो भी काउंट होगी? नो, डायरेक्टरशिप इन सेक्शन 8 कंपनी विल नॉट बी काउंटेड फॉर कैलकुलेटिंग द सीलिंग विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 165। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है क्या? द आंसर इज नो। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें आप ध्यान में रख लो, एक दो बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। गवर्नमेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, यस। रेजिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहिए क्या? द आंसर इज यस। रिटायरमेंट बाय रोटेशन, द आंसर इज यस। अच्छा, बोनस शेयर्स इश्यू कर सकती है क्या? द आंसर इज नो, तो डिविडेंड ही नहीं दे सकती। ठीक है ना, सेक्शन 8 कंपनीज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, क्योंकि क्या है, इसको तो अपने प्रॉफिट्स को अप्लाई करना है टुवर्ड्स चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, और डिविडेंड भी नहीं दे सकती, तो इसीलिए बोनस भी नहीं दे पाएगी। क्या सेक्शन 8 कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बोनस दे सकती है? आंसर इज यस। ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉयज। हाउएवर बोनस कैन नॉट बी पेड टू ए मेंबर इवन इन हिज कैपेसिटी एज एन एम्प्लॉय। लेकिन बोनस किसी मेंबर को नहीं दे सकते। बोर्ड प्रोसेस, हाउ मेनी मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड? ठीक है, भाई नॉर्मली क्या है, 4 मीटिंग्स, 1 इन ईच क्वार्टर होती है। यहाँ पर कितना है? यहाँ 1 एग्जामिशन नोटिफिकेशन है, रेड विथ सेक्शन 173(1). तो इनको कितनी मीटिंग करनी है? 1 दो मीटिंग ही। विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स। ठीक है,
और इनके लिए कोरम कितना है? 8 डायरेक्टर्स और 25% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ, विच एवर इज लोअर, और द कोरम शेल नॉट बी लेस देन 2 members। जो जो हाईलाइटेड है मैं वही वही पढ़ रहा हूं सिर्फ, ठीक है। क्या सीएसआर वाले प्रोविजंस कंप्लाई करने हैं इसको? द आंसर इज यस। तो सेक्शन 135 विच डील्स विद सीएसआर, इट अप्लाइज टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग सेक्शन 8 कंपनी। अच्छा, एक कंपनी ने अपने ऊपर ही पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। इस सेक्शन 8 कंपनी कंप्लायंट इफ इट कंट्रीब्यूट द सीएसआर अमाउंट्स टुवर्ड्स इट्स ओन एक्टिविटीज विच में बी चैरिटेबल इन नेचर, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी का तो काम ही चैरिटेबल करना है, ठीक है। नो, स्पेंडिंग बाय द कंपनी इन इट्स ऑन इट्स ओन एक्टिविटीज विल नॉट क्वालिफाई एज सीएसआर स्पेंड। The amount needs to be spent on activities other than normal activities of the company and not for the benefit of the company or its employees. क्या सेक्शन 8 कंपनी को किसी ऐसी कंपनी के साथ अमेलगमेट कर सकते हैं जो कि सेक्शन 8 कंपनी नहीं है? द आंसर इज नो। क्या सेक्शन 8 कंपनी को दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमेलगमेट कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, आपने प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं है। अब मान लीजिए वाइंडिंग अप हो गई सेक्शन 8 कंपनी की, तो क्या होगा? ठीक है, तो any assets that remain after satisfaction of its debts will be transferred to another company registered under section 8। तो किसी ऐसी कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी को ही उसके फंड्स ट्रांसफर कर देंगे विद हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ये स्ट्राइक ऑफ के लिए कर सकते हैं क्या? द फास्ट ट्रैक एग्जिट मोड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी एज डिफंक्ट शैल नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। तो इनको ये 560 वाला भी प्रोविजंस अवेलेबल नहीं है। अब एग्जाम्पशंस क्या क्या अवेलेबल है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 वो ये कहता है कि जो क्लॉज 24 है सेक्शन 2, ये सेक्शन 8 कंपनी पर अप्लाई नहीं होती है। सेक्शन 268 रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल शैल नॉट अप्लाई, ये अलग से बना रखा है, ठीक है ना। कौन कौन सी चीजें इस पर अप्लाई नहीं होती ये जरूर देख लीजिएगा। ट्वेंटी वन डेज की बजाय 14 डेज हो गया, ये हमने कवर कर ही लिया। रेजोल्यूशंस, ये का जो नोटिफिकेशन वगैरह है, ये भी आपका सेक्शन 8 कंपनी भी कवर हो गया। तो कभी कभी बहुत सवाल पूछ लेता है, आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं उसमें।
ये पढ़ लेते थोड़ा, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड अमेलगमेशन, कई बार इस पर सवाल पूछ लेता है वो। 230 ना सर सेक्शन? हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये मैं शेयर कर देता हूँ पहले। हम्म ये आपका सेक्शन 230 से आता है। तो सेक्शन 230 भी खोल लेता हूँ मैं एक बारी। ये है सेक्शन 230। तो सेक्शन 230 क्या बोलता है? सेक्शन 230 बोलता है, पहले तो बात ये है, आपको मालूम ही है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और अमेलगमेशन का मतलब क्या है। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और अमेलगमेशन का बेसिक मतलब ये है कि कंपनी अपने सारे पैसे नहीं दे पा रही, तो जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, जो उसके क्रेडिटर्स हैं, वो कह देते हैं भैया हमें पूरे पैसे नहीं चाहिए, हमें कुछ थोड़े से कम दे दो। ठीक है। वो खुद ही एप्लीकेशन लगाते हैं, किसको? एनसीएलटी को। और एनसीएलटी के पास एक स्कीम ले जाके एक स्कीम देते हैं, और वो बेसिकली उस स्कीम जब उनके पास आ जाती है तो वो उसके लिए फिर एक पब्लिक नोटिस कॉल करते हैं नॉर्मली। जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, अगर सेबी इन्वॉल्व है या और भी चीज़ें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह, तो उनको भी नोटिस भेजते हैं, भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। फिर वो स्कीम अप्रूव करते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और अमेलगमेशन की ये है बेसिक फंडा इसमें। ठीक है। तो सेक्शन 231 क्या बोलता है कि अगर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट प्रपोज किया है, ठीक है, तो who may order a meeting of the members or creditors or class of them to be called, held and conducted for compromise or arrangement between a company and its creditor or its members or any class of them। ठीक है। तो इसमें कौन कर सकता है मीटिंग? कौन कौन कर सकता है? एज द ट्रिब्यूनल डायरेक्ट्स। तो कौन मीटिंग कॉल करेगा? बेसिकली द ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन। तो आंसर क्या होगा इसका? एनसीएलटी। इसका आंसर होगा एनसीएलटी, सेक्शन 230 सबसेक्शन 1। अच्छा, हु में मेक एन एप्लीकेशन टू थ्रू द ट्रिब्यूनल फॉर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। एप्लीकेशन कौन दे सकता है? एप्लीकेशन देने के लिए आपको सेक्शन 230 सबसेक्शन 1 ही पढ़ना है। तो सेक्शन 230 सबसेक्शन 1 देता है, कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर्स और एनी क्लास ऑफ देम, और बिटवीन ए कंपनी एंड इट्स मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ देम। ठीक है। और इन द केस ऑफ ए कंपनी विच इज बीइंग बाउंड अप ऑफ द लिक्विडेटर। ठीक है। तो लिक्विडेटर भी एप्लीकेशन दे सकता है, या लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन ये आईबीसी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन कौन दे सकता है? कंपनी दे सकती है, क्रेडिटर दे सकता है, मेंबर दे सकता है, लिक्विडेटर दे सकता है, या लिक्विडेटर जो आईबीसी में अपॉइंट होता है वो दे सकता है। पर्टिकुलर्स क्या क्या देने हैं आपको? एप्लीकेशन जब आपने लगानी है सेक्शन 230 सब सेक्शन 1 में, तो क्या क्या पर्टिकुलर्स देने हैं आपने? आपने पर्टिकुलर्स देने हैं, ये आपको दिया हुआ है सेक्शन 230 सब सेक्शन 2 के अंदर। क्या कहता है? ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द कंपनी। ठीक है। such as the latest financial position of the company, latest auditor's report on the accounts of the company, and the pendency of any investigation or proceedings against the company। ठीक है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में बताना है। तो एनी स्कीम ऑफ सीडीआर consented to by not less than 75% of the secured creditors in value including such particulars as may be prescribed। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। उसके आगे क्या है? एनी स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग शुड इंक्लूड। अगर कोई आपने सीडीआर की स्कीम सजेस्ट की है कि भाई कॉर्पोरेट डेट हमारा रिस्ट्रक्चर कर दो, तो उसमें क्या रहेगा? ठीक है।
एक तो क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट रहेगी, सेफगार्ड्स रहेंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड एसेट्स, और रिपोर्ट बाय द ऑडिटर रहेगी दैट द फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर द सीडीआर एज अप्रूव्ड शैल कंफर्म टू द लिक्विडिटी टेस्ट बेस्ड अपॉन द एस्टिमेट्स प्रोवाइडेड टू देम बाय द बोर्ड। ठीक है। एंड where the company proposes to adopt the CDR guidelines specified by RBI, a statement to that effect। फिर एक वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आपने लगानी है। ये सारी की सारी चीजें आपने लगानी है अगर आप कोई सीडीआर की स्कीम सजेस्ट कर रहे हो तो। इसमें फायदा क्या होता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट या इसमें ना, एक तो वाइंडिंग अप नहीं होती ना, आईबीसी में जाती कंपनी, कंपनी के बंदे खुद ही कह रहे हैं कि हमारे को कम पैसे दे दो। ठीक है। कौन ला सकता है स्कीम? कंपनी भी ला सकती है, कोई क्रेडिटर भी ला सकता है, कोई मेंबर भी ला सकता है, कोई लिक्विडेटर भी ला सकता है। ठीक है। मतलब ये सेक्शन 59 के अंदर जो लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, वेदर ही हाँ कैन फाइल अंडर 230। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यस यस। नोटिस किसको भेजना है ये सेक्शन 230 सबसेक्शन 3 बताता है हमारा। तो सेक्शन 230 सबसेक्शन 3 कहता है कि नोटिस किसको भेजना है। पहले तो ऑल दी क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एंड टू ऑल द मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स, और फिर ऑल द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इंडिविजुअली एट द एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी विच शैल बी अकॉम्पनीड बाय ए स्टेटमेंट। ठीक है। तो इस सबको नोटिस आपको देना है। किस किस को देना है? बेसिकली क्रेडिटर्स को देना है या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स इंडिविजुअली। ठीक है। तो ए बी सी एंड डी हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा इसके आगे देखते हैं, ये कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। नोटिस ऑफ मीटिंग शुड बी अकॉम्पनीड बाय ए स्टेटमेंट। इसके साथ में स्टेटमेंट लगानी है। क्या स्टेटमेंट लगानी है? डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, a copy of the valuation report if any, and explaining their effect on creditors, KMP, promoters and non-promoters and the debenture holders, and the effect of the compromise or arrangement on any material interests of the directors of the company or the debenture trustees and such other matters as may be prescribed। ठीक है। ये नोटिस ऑफ मीटिंग में ये भी एक स्टेटमेंट देनी है कि क्या डिटेल्स होंगी, वैल्यूएशन रिपोर्ट क्या है, और जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा किसके ऊपर, क्रेडिटर्स, केएमपी, प्रोमोटर्स या नॉन प्रोमोटर मेंबर्स एंड डिबेंचर। ठीक है। और या फिर ये इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ऑन एनी मेटीरियल इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टीज। क्या वेबसाइट पर भी लगाना है? द आंसर इज यस। ठीक है। सर इसका रूल्स भी है ना? रूल्स भी है हाँ, पर अभी तो हाँ। सेक्शन 8 मेरे पास, कंपनीज एक्ट भी मैंने खोल रखा है साथ में, तो ओके। मैं बुक से ही पढ़ रहा हूँ, सेक्शन 230 से ही पढ़ रहा हूँ। ओके सर। साइड बाय साइड आई ओपन बुक ऑल्सो। ये देखिए बुक नजर आ रही है मेरी ना? हाँ यस सर। हाँ ये है। तो सेक्शन 230 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? ये वही बोलता है कि नोटिस आपको इसकी वेबसाइट पर भी लगाना है। प्रोवाइड फर्स्ट प्रोवाइज हुआ इसमें। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी नोटिस जो है किसको भेजने हैं? सेबी को भेजने हैं या स्टॉक एक्सचेंज जहां पर ये लिस्टेड है। ठीक है। फॉर प्लेसिंग ऑन देयर वेबसाइट एंड शैल ऑल्सो बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स। ठीक है। न्यूज़पेपर्स में भी ये देने हैं। अब जो नोटिस जाएगा तो नोटिस में ये रहेगा कि भाई ये
they can vote either themselves or through proxies or by postal ballot. ऑब्जेक्शन कौन कर सकता है ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट पे? ऑब्जेक्शन हो सकता है नॉट होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग, या हैविंग आउटस्टैंडिंग डेट अमाउंटिंग टू नॉट लेस देन 5% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डेट। ठीक है, ये लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की स्कीम। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये जो नोटिस है किस किस को भेजना है? ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजना है, सेक्शन 230 सबसेक्शन 5। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, आरबीआई, सेबी, रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज, ऑफिशियल लिक्विडेटर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सच अदर सेक्टरल रेगुलेटर, इन सबको भेजना है आपने। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आरडी को? हाँ आरडी, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर भी आता है वो आपका रीजनल डायरेक्टर ही है। द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ पर्संस। ये स्कीम कितने लोगों ने अप्रूव करनी है? सेक्शन 230 सबसेक्शन 6 बोलता है, वो ये बोलता है कि कितने लोगों ने ये स्कीम करनी है, रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू। ठीक है, तो 3/4 ने करनी है, majority of persons representing 3/4 in value of the creditors। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अच्छा, सेक्शन 230 सबसेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्शन 230 सबसेक्शन 7 बोलता है कि आप ये स्कीम जो है एनसीएलटी तब तक अप्रूव नहीं करेगा जब तक ऑडिटर भी कंपनी का सर्टिफिकेट नहीं लगा देता। वो क्या कहेगा कि ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया गया है इट इज इन कंसोनेंस विद 253 ना? ये एक मिनट, ये है 230। 133 सर, accounting standards prescribed under section 133। राइट, ये फर्स्ट प्रोवाइजो है ना। हाँ, तो ये हमारा इसका हो जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ये फर्स्ट प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट नो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट शैल बी सैंक्शनड बाय द ट्रिब्यूनल अनलेस a certificate by the company's auditor has been filed by the tribunal to the effect। ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 उसके Company अकॉर्डिंग इसकी ट्रीटमेंट statutory नहीं किया। auditor should issue this ना सर? हाँ यस। सेक्शन 230 सबसेक्शन 8 क्या बोलता है कि ये जो ऑर्डर है ट्रिब्यूनल का इट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार बाय द कंपनी विद ए पीरियड ऑफ 30 days। तो 30 days के अंदर आपको ये करना है। ठीक है, आंसर विल बी ए। अच्छा, नाउ अब जो ट्रिब्यूनल को आपने कहा कॉम्प्रोमाइज की स्कीम सजेस्ट की, ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है वो कह दे कि भाई मीटिंग कॉल करना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है वो कि कितने परसेंट अगर एग्री करें तो मीटिंग कॉल करना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर दिया गया है सेक्शन 230 सबसेक्शन 9 के अंदर 90% होने चाहिए। ठीक है, द ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस विद कॉलिंग ऑफ ए मीटिंग ऑफ क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स वेयर सच क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैविंग एटलीस्ट 90% इन वैल्यू। ठीक है, 90% वैल्यू अगर अग्री कंफर्म करेंगे तो फिर जो है मीटिंग कॉल करना जरूरी नहीं है। सेक्शन 230 सबसेक्शन 10 क्या बोलता है? ये बाईबैक जो है ये सेक्शन 68 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो बाईबैक के प्रोविजंस कहाँ दिए गए हैं? सेक्शन 68 में। अच्छा, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया कॉम्प्रोमाइज स्कीम के लिए, तो क्या उसके पास सुपरविजन की पावर है? द आंसर इज यस। ठीक है, ये कहाँ दिया गया है? सेक्शन 231 सबसेक्शन 1 में। तो इट शैल हैव द पावर टू सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन, टू गिव and may at the time of making give such directions in regard to any matter or make such modifications in the compromise or arrangement as it may think necessary। ठीक है, सेक्शन 231 सबसेक्शन 2 अगर ये बोलता है कि भाई ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकती सेटिस्फैक्टरली तो क्या करेगा? तो ये वाइंडिंग अप के लिए रिकमेंड कर देगा।
सर ये आईबीसी के अलावा 29 वाले वाला प्रोविजन सब पे एप्लीकेबल होगा क्या? कौन से? मतलब एक इसमें कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के लिए एक सिचुएशन थी जो आईबीसी में लिक्विडेटर करता है, और बाकी सिचुएशंस में भी 29 की एप्लीकेबिलिटी रहेगी क्या? नहीं नहीं वो नहीं 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 लिक्विडेशन नहीं का नहीं, काम आई 29 है तो देखो, अगर आईबीसी में आई है कंपनी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डिफॉल्ट हुआ ही नहीं, तो भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं सजेस्ट। कंपनीज एक्ट अलग चलता है, आईबीसी अलग चलता है। आईबीसी में अगर आ गया तो वहां पर वो 29A वाला चलेगा। अगर कंपनीज एक्ट में तो 29A का कोई चक्कर ही नहीं है। सर क्योंकि वहां पे भी ऐसे ही लिखा है ना कि कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट जैसा कंपनीज एक्ट में वैसा नहीं, होगा, वो और तो ये कहता कंपनी है आईबीसी को भाई, देखो वो क्या सुपरसीडिंग कहता भी है, रखा है। वो तो ये कहता है भाई हम्म। आपकी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, तो लिक्विडेशन से हम्म। पहले आप फर्स्ट 90 डेज में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ट्राई कर लो। वो तो ये कहता है ना, आईबीसी में तो ये कहता है। अब आप तो मान लो सर बस आपकी कंपनी आईबीसी में गई ही नहीं, तो भी कॉम्प्रोमाइज हम्म। अरेंजमेंट की स्कीम तो आ ही सकती है ना। तो ये सेपरेट सिनेरियो है। अगर लिक्विडेशन अच्छा। में चलेगी तो लिक्विडेटर अपॉइंट कर देगा, लिक्विडेटर लगा देगा ये स्कीम। नहीं तो मेंबर्स क्रेडिटर्स भी लगा सकते हैं। दोनों तो अलग अलग। बस 29 में जो इनएलिजिबल है वो बस आईबीसी वाले सिचुएशन में नहीं नेचुरली कर पाएगा, बाकी कंपनीज एक्ट केस में में कर 29 लेगा। की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ। ठीक है। 231(2), तो 231 क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर ये नहीं हो सकती तो क्या होगा? तो ये इट में मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप। और ये कौन सा ऑर्डर माना जाएगा? ऑर्डर अंडर सेक्शन 273। अच्छा, अब इसमें 230 और 231 डैश इंप्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्प्यूट। तो क्या मतलब है इसका? कौन कहाँ पे है सर? ये 20, सेक्शन 20 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रिकंस्ट्रक्शन डी मर्जर इंप्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट। कॉम्प्रोमाइज। सर कॉम्प्रोमाइज। इसका आंसर देख लेते हैं क्या बोलता है। इसका आंसर है 21 था ना ये? 21 का आंसर है बी। हम्म, अरेंजमेंट है। 20 था, 21 था ये? 20 में तो यही है मेरे ख्याल। 20 का आंसर है ए। कॉम्प्रोमाइज। 20 का आंसर ये है सर। हम्म। और ये क्या है? इन्वॉल्व्स रीएडजस्टमेंट ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स। ये इसमें किस में आ रहा है? ये अरेंजमेंट आ रहा है, अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स दिस। एक्चुअली ये आपको ना डेफिनेशन में मिल जाएगा। जब ये सेक्शन शुरू होता है ना, जब ये चैप्टर शुरू होता है, तो उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है कि कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है, अरेंजमेंट का मतलब क्या है। द पर्पज ऑफ गोइंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन इज, रिकंस्ट्रक्शन का पर्पज क्या है बेसिकली? टू टू रिऑर्गेनाइज दी, रीऑर्गेनाइज शेयर के हाँ, शेयर टू कैपिटल। रिऑर्गेनाइज दी शेयर कैपिटल। An objection to the scheme of compromise or arrangement raised by ex-statutory auditor holding only 8 equity shares in the company could be treated as a dispute between the management and the ex-statutory auditor. ट्रू। ये यो कहता है कोई एक्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर है जिसके पास सिर्फ 8 शेयर है कंपनी के,
और उसने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो क्या इसको डिस्प्यूट मान सकते हैं? इसका ट्रू आंसर सर, आपको ट्रू। यहां से पता चलेगा कि कौन डिस्प्यूट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। लिखा ना, नॉट लेस देन 10%। यस सर। तो ये डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा। The term class of members includes preference shareholders for the purpose of approving scheme of compromise or arrangement. क्लास ऑफ मेंबर्स में क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आ रहे हैं या नहीं आएंगे? आएंगे ना सर। हम्म। इक्विटी एक क्लास है, प्रेफरेंस एक क्लास है। हाँ, ये इसका आंसर स्पेसिफिकली आपको मिल जाएगा सेक्शन 230 सबसेक्शन 7 के अंदर। Mere approval of scheme by majority does not validate the compromise or arrangement. The scheme has to be sanctioned by NCLT. The answer is yes, true. ठीक है ना? तो आपने एग्री कर लिया, बट अल्टीमेटली इट हैज टू बी सैंक्शनड बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये आंसर शीट दे रखी है हमने। फिर मर्जर एंड अमेलगमेशन वगैरह ये सब आप इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, वो ये कहता है कि जो अमेलगमेशन का राइट है ये स्टैट्यूट से ही मिल रहा है आपको, कंपनीज एक्ट से ही मिल रहा है, और ये आपके मेमोरेंडम में कोई स्पेशल प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, सही है गलत है? सर आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन तो चाहिए ना। Okay, quiet. सेक्शन 232। इसका आंसर क्या है देखते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए। तो ये आपको पावर स्टैट्यूट से ही मिल रही है, और कोई सेपरेट प्रोविजन कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स में जरूरत नहीं है। तो एक बार ये क्वेश्चन आंसर्स भी देख लीजिएगा, इसको और देखते हैं। ये भी मैं शेयर कर दूंगा, ये मैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट शेयर नहीं किया है, ये भी मैं शेयर कर देता हूँ आपसे। ये वाली तो मैंने शेयर कर दी है पीपीटी। सेक्शन 8 का शेयर कर दिया ना सर? सेक्शन 8 का शेयर कर दिया, हाँ। ओके सर। ये भी अभी शेयर कर देता हूँ मैं। बाकी फिर मंडे को देखते हैं। कल कल और परसों परसों तो नहीं हमारी रहेगा ना सर? काउंटिंग है एक्चुअली, अभी बार बार फोन ओके सर। के पर्पज से आ रहे हैं। कौन सा काउंटिंग है सर? अरे वो ये अपनी आईसीआई के इलेक्शन चल रहे हैं ना। हम्म तो
उसके लिए जाना है कल सर आप को। भी खड़े हुए हैं क्या? आप भी खड़े हुए हैं? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खड़ा हूँ, हमारा दोस्त खड़े हुए हैं, हंसराज चौधरी, सेंट्रल सपोर्ट कर काउंसिल मेंबर है वो, ही इज ऑलरेडी सेंट्रल काउंसिल मेंबर। अच्छा अच्छा। हम्म।